السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ایان اسکیری سٹوریز۔ دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے اور صحت والی لمبی عمر دے، زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور جتنے لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، اور جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ یہ دعا ہے میری آپ لوگوں کے لیے، اور آپ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ تو بنا دیری کے بڑھتے ہیں اپنی آج کی سٹوری کی طرف۔ میرا نام کاشف ہے، اور میں پنڈی سے آپ کو اپنے ساتھ گزرا ہوا یہ واقعہ بھیج رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ گزرا ہوا یہ واقعہ 2014 کا ہے۔ تب جون کا مہینہ چل رہا تھا، اور گرمی اس قدر تھی کہ ایک سیکنڈ بھی دھوپ میں کھڑا ہونا محال تھا۔ میں اور میری وائف ہر سال گرمیوں میں ناردرن ایریاز کی طرف لازمی جاتے تھے، تو اس سال کی گرمی کو دیکھتے ہوئے ہم نے دوبارہ سے کسی ایسی جگہ جانے کا پلان کیا جہاں گرمی کی شدت کم ہو اور ہم 2-4 دن سکون سے رہ سکیں۔ خیر، جب میں نے اپنے دوست ثاقب سے ناردرن ایریاز کی طرف جانے کا ذکر کیا تو وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کی فیملی میں صرف وہ اور اس کی وائف ہی تھی، اور میری فیملی میں بھی میں اور میری وائف ہی تھے۔ ثاقب میرا بہت ہی پرانا دوست ہے، اور ہم دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اکثر دونوں فیملیز مل کر گھومنے پھرنے بھی جایا کرتے تھے، لیکن اس بار ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا تھا جس کو آج تک ہم بھلا نہیں سکے۔ جمعے کی شام کو ثاقب اپنی وائف کے ساتھ میرے گھر آ چکا تھا، اور کچھ ہی دیر میں ہم چاروں نے نتھیا گلی کے لیے نکلنا تھا۔ ہمارا پلان کچھ ایسے تھا کہ ہم نے فرائیڈے کی شام کو جانا تھا اور سنڈے کی شام کو واپس آنا تھا۔ خیر، کچھ گھنٹوں کا سفر طے کرنے کے بعد ہم نتھیا گلی کے کسی ایک ہوٹل میں پہنچ گئے۔ یہ ہوٹل دیکھنے میں ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ کوئی پرانا گھر ہے، جس کو عارضی طور پر ہوٹل کا نام دیا گیا ہے۔ وہ ہوٹل کافی پرسکون تھا، وہاں پر کوئی بھی شور شرابہ نہیں تھا، ہر طرف بس خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور وہاں کے کمرے بھی کافی سمپل سے تھے۔ ہر کمرے میں 2 بیڈ اور ایک چھوٹی سی ٹیبل اور 2 چیئرز تھی، لیکن ہوٹل کے باہر کا ماحول بہت ہی عجیب تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے دیکھتے تو ہر طرف لمبی گھاس اور بڑے بڑے درخت نظر آتے تھے۔ اس ہوٹل کی طرف آنے والا راستہ بھی سنسان اور بہت ہی تنگ سا تھا، اور اس راستے کے آس پاس بھی کافی بڑی بڑی جھاڑیاں موجود تھیں۔ بس وہی ایک راستہ اس ہوٹل کو مین روڈ سے جوڑتا تھا۔ بہرحال کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ ریسٹ کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ہوٹل کے کسی ایک کمرے میں میری فیملی تھی، جبکہ دوسرے کمرے میں ثاقب اور اس کی وائف تھی۔ اصل واقعہ تو کمرے میں جانے کے بعد شروع ہوا۔ ہم لوگ اپنے قدموں سے چلتے ہوئے مصیبتوں کی طرف آئے تھے۔ جیسے ہی ہم کمرے میں آئے تو لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد میری وائف نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے جگا دیا۔ اس کی آنکھ ایک ڈراؤنا خواب دیکھنے کے بعد کھلی تھی، جس کی وجہ سے وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ ہم ایسے ہی کسی ایک کمرے میں سو رہے تھے، اور پھر اچانک کوئی اس کے کان کے پاس آ کر خوفناک آواز میں کہتا ہے، اس کمرے میں تمہارا آنا ہمیں اچھا نہیں لگا۔ ڈر سے اس کی آنکھ کھل گئی، اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کھڑکی کے پردے کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے اس کا ڈر دور کرنے کے لیے پردہ ہٹایا اور کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا، لیکن اس ہوٹل کے آس پاس کی لگی ہوئی جھاڑیاں اور درخت بہت ہی خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ میں جیسے ہی پیچھے مڑا تو آپ یقین کیجئے مجھے ایسا لگا کہ واقعی میں میرے پیچھے کوئی کھڑا تھا۔ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ اس وقت میری کیا فیلنگز تھی۔ ایک انجانا سا خوف مجھے محسوس ہوا، اور ساتھ ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
डर से मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी, मुझे इतना भी याद ना रहा मैं कोई दुआ पढ़ लूँ। आपके व्यूअर्स में से अगर कभी किसी के साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आया तो वो मेरी फीलिंग्स समझ जाएगा। मेरी वो कैफ़ियत बस कुछ ही देर की थी। मैं फ़ौरन अपनी वाइफ़ के पास गया, लेकिन इस बारे में मैंने अपनी वाइफ़ को कुछ भी ना बताया कि मुझे अभी क्या फ़ील हुआ है। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद वो तुम्हारा वहम था। मैंने उससे कहा कि बस एक ही रात इस होटल में गुजारेंगे और कल सुबह कोई अच्छा होटल देखकर बाकी के दिन वहीं गुजार लेंगे। हम लोग बातें तो कर रहे थे, लेकिन मेरा पूरा ध्यान उस खिड़की पे था। हमें उस कमरे में बैठे कोई आधा घंटा ही गुजरा होगा कि अचानक हमारे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बजा। मैंने जब गौर किया तो मुझे बाहर से साकिब की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो साकिब कहने लगा, यार। मेरी जब आँख खुली, मैंने सिगरेट पीने के लिए कमरे की खिड़की खोली तो वहाँ पर मैंने कुछ अजीब सा महसूस किया। एकदम बहुत ज़्यादा गर्म हवा का झोंका मेरे अंदर से होते हुए खिड़की से बाहर निकल गया, और उस वाक़े के बाद मुझे बहुत ही घबराहट महसूस हो रही है। जब मैंने साकिब की ये बात सुनी तो मैं हैरान हो गया और उसे अपने साथ होने वाला वाक़या भी बता दिया। उसके बाद हम दोनों ने ये फ़ैसला किया कि यहाँ कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए बेहतर यही होगा कि अलग अलग कमरे के बजाय हम सब लोग साथ रहें। कुछ ही देर बाद साकिब अपनी वाइफ़ को लेकर मेरे कमरे में आ गया। हम दोनों की बीवियों को उन सब वाक़यात के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन वो हम दोनों को परेशान देखकर वजह पूछने लगी। हमने बस इतना कहकर टाल दिया कि ये जगह काफ़ी अजीब और वीरान है, इसलिए बेहतर है कि हम सब एक साथ रहें। कल सुबह होते ही हम किसी दूसरे होटल चले जाएंगे जहाँ पर कोई और भी लोग मौजूद हों। यहाँ तो हमारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। हम सब बैठे बातें ही कर रहे थे कि अचानक हमें बाहर से कुछ कहकों की आवाज़ सुनाई दी। आधी रात हो चुकी थी और इस वक्त उन कहकों की आवाज़ हमें काफ़ी खौफज़दा कर रही थी। कुछ न कुछ हमें अंदाज़ा तो हो गया था कि बाहर कोई ना कोई चीज़ ज़रूर है, मगर मैं और साकिब अपनी बीवियों को दिखाने के लिए खिड़की के पास जाकर देखने लगे। हमने फिर उनसे कहा कि बाहर तो सब कुछ ठीक है, ऐसी जगहों पर ऐसी खौफनाक आवाज़ें आती रहती हैं। अभी तक तो सब ठीक था और यहाँ पर जो भी असरात थे उसके बारे में मैं और सिर्फ साकिब ही जानते थे। लेकिन कुछ देर बाद ऐसा हुआ जिसके बाद हम सबके पसीने छूटने लगे। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि हम सब बैठे एक दूसरे को तसल्ली ही दे रहे थे कि एकदम से हमें कमरे के बाहर अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुनकर हमारी बीवियों को कुछ हद तक अंदाज़ा हो गया कि इस होटल में कुछ तो है जो दिखाई तो नहीं देता मगर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा है। फिर अचानक से दरवाज़ा बजा। हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई दरवाज़ा खोल कर देखे। हम चारों खामोश और परेशानी की हालत में एक दूसरे को देख रहे थे कि अचानक फिर से कोई हमारे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगा। अयान भाई, मैं आपको क्या बताऊं कि उस वक्त हमारी क्या हालत हो चुकी थी। अब तो हमारी बीवियों ने भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था और हम दोनों खौफज़दा हालत में दरवाज़े की तरफ देख रहे थे। कुछ ही देर बाद हर तरफ आने वाली आवाज़ें रुक गई और एक बार फिर उस होटल में खामोशी और सन्नाटा छा गया। लेकिन ये खामोशी बस कुछ ही मिनटों की थी। हमने अभी सुकून का सांस भी नहीं लिया था कि हमारे कमरे की खिड़की ज़ोर ज़ोर से बजने लगी और एक तेज़ हवा के साथ पर्दे भी उड़ने लगे। देखने में तो ये सब फिल्मी सीन जैसा था, लेकिन सच में ये सब हमारे साथ हुआ था। ये सब देखकर हमारी रूह कांप सी गई। हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि हम इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाएं। हमें जो भी दुआएं आती थीं हमने ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दी।
उन आवाज़ों की शिद्दत तो कम हो चुकी थी, लेकिन अभी भी हमें वो आवाज़ें थोड़ी सुनाई दे रही थीं। कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो ना जाने कैसे हमारे कमरे का दरवाज़ा लॉक था। हम सब की कोशिश करने के बावजूद भी हम दरवाज़ा खोलने में नाकाम हुए। हम सब खौफ की हालत में डरे सहमे कमरे के कोने में बैठे थे कि अचानक कहीं दूर से फजर की अजान सुनाई देने लगी। अजान की आवाज़ आते ही सब कुछ एकदम से थम गया। अब ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। जब हमें ऐसा लगा कि अब सब कुछ रुक चुका है तो साकिब दरवाज़े के पास जाकर देखने लगा कि शायद इस बार दरवाज़ा खुल जाए। साकिब ने जाकर दरवाज़ा खोला तो इस बार दरवाज़ा खोलने में कामयाब हुआ। दरवाज़ा खुलते ही हमने दौड़ लगा दी और भागते हुए होटल से बाहर आ गए। बाहर आते ही हमें वो होटल का मैनेजर दिखाई दे गया। हमने अपने साथ होने वाला सारा वाक़या उन्हें बताया और हमने गुस्से में कहा कि अजीब माहौल है तुम्हारे इस होटल का। मैंने उसे कहा कि अब हम यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकेंगे, जल्दी से किसी गाड़ी का बंदोबस्त करो, हम फ़ौरन यहाँ से जाएंगे। हमारी बात सुनते ही उसने हमसे कहा कि आप सब मुसलमान हैं और आप सब जिन्नात पर यकीन तो करते ही होंगे। और फिर वो मैनेजर हमसे कहने लगा, यहाँ पर जिन्नात तो हैं लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, बस अपने होने का एहसास दिलाते हैं। आप लोग बेफिक्र होकर यहाँ रहें और इन्जॉय करें। हमारे घर तो और भी जंगलों के बीच में है। अगर आप यहाँ नहीं रुक सकते तो आप मेरे घर में एक सेकंड भी नहीं गुजार पाएंगे। उसकी ये बात सुननी थी, मुझे इतना गुस्सा आया मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने उसी गुस्से वाले अंदाज में उसे कहा कि तुम अजीब बकवास किए जा रहे हो। हमने आपसे कहा ना कि हम यहाँ नहीं रुकना चाहते, तो मतलब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। तुम गाड़ी अरेंज करो ताकि हम यहाँ से जाएं। खैर कुछ ही देर बाद हम वहाँ से निकल आए। मैं और मेरी वाइफ़ तो काफ़ी बेहतर थे, लेकिन मेरे दोस्त और उसकी वाइफ़ को काफ़ी तेज़ बुखार हो चुका था। हमने इसी दिन ही घर वापस जाने का फ़ैसला किया और कुछ ही घंटों बाद हम घर वापस आ गए। अयान भाई, इस वाक़ये को गुज़रे हुए काफ़ी अरसा हो चुका है, लेकिन उस रात जो हम सब ने देखा वो आज भी हमारे जहनों में ताज़ा है। तो दोस्तों, ये था नथिया गली का एक अजीबोगरीब वाक़या। तो उम्मीद है आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मुझे सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।